कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के इस्तेमाल करें कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी एक जैसे नहीं होते हैं। जब कंसिस्टेंसी होगी तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी हटा कर आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद है 76 information is dash if it can be used for predictive and for confirmatory process। prediction किससे लगा सकते हैं आप? relevant से अभी आपने किया था जब कितने सालों की इंफॉर्मेशन होगी तभी आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए। नंबर 77 भी करें जरा। How does the comparability concept benefit users? Comparability कैसे आपको फायदा देती है? It ensures that financial statements are prepared by chartered accountants। ये तो नहीं पता किस तरह होगा comparability में। It allows users to compare financial statements between different periods and entities। हाँ जी, comparability का मतलब होता है अपनी पास्ट के साथ कंपेयर करो या फिर दूसरी कंपनीज के साथ। It focuses on ensuring financial statements are error free। ये तो true and fair में आता है, तब उसमें तो नहीं आता comparability में। It requires companies to report all financial statements in the same currency। ये भी नहीं होता। comparability में क्या चीज आती है? किसके साथ कंपेयर करो? खुद को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करो और अपने एंटिटीज की बाकी कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करो। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, बीटा। Number 78 which of the following best illustrates the verifiability concept in accounting? Verify कर। B. The auditors independently provide assurance that the company's financial statements accurately represent its economic activities। मैंने आपको अभी करवाया है। verifiability का मतलब होता है auditors कहते हैं the financial statements are true or fair। Number 79 what does the reliability concept in accounting emphasize? क्या जरा सारे ऑप्शंस देखें। हाँ, financial statements should be verifiable, accurate, dependable, based on objective evidence। reliability का मतलब होता है आपकी financial statements reliable होनी चाहिए। reliable कब हो सकती हैं? जब वो verified हो, यानी ऑडिटर्स बोले बिल्कुल ठीक है। जब वो accurate हो, यानी accurate मींस कोई fraud नहीं, कोई error नहीं, कोई biasness नहीं। Number 80 why is the timeliness concept important in accounting? D. Data it allows decision maker to receive information in time to influence their decision। अभी बताया ना शेयर होल्डर की ओर पर इन्वेस्ट करते हैं अगर आपने टाइम पर ना प्रेजेंट किया तो ऑप्शन डी डेल्टा। नंबर 81 करें। 81 How does the understandability concept benefit users of financial statements? It ensures financial statements is presented clearly and concisely for users with reasonable knowledge of business। यही है ना, सिंपल हो, हर एक बंदे को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ऑप्शन ए। नंबर 82 what is the time constraint on useful information in accounting? cost constraint क्या मतलब वो cost constraint का? The cost of providing financial information should be justified by the benefits it providing। ऑप्शन बी, बीटा। यानी उसके बेनिफिट ज्यादा हो और कॉस्ट उसकी कम हो तभी वो जस्टिफाई कर सकेगी। नंबर 83 ABC Enterprises using the following principle for preparation of its financial statements: items of capital nature costing less than 1000 are charged to expense। what is the name of accounting principle? बताइए रेडी, आराम से सोच बताएं। कहता है ऐसी चीजें जिनकी अमाउंट 1000 से कम है उन्हें एक्सपेंस में डालो। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मटीरियलिटी की बात हो रही है फिगर की। अगर 1000 से
चीजें हैं तो उसे कहाँ पे आप शो करोगे कैसे एक्सपेंस शो करोगे। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, अमाउंट की बात हो रही है मटेरियलिटी। नंबर 84 ABC enterprises using the following principle for preparation of financial statements. The sales revenue is recorded on dispatch of goods to customer irrespective of the date of payment. चाहे पैसे मिले या ना मिले अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लो। तो कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट अक्रूवल बेसिस। नंबर लास्ट 85 है ABC enterprises using the following principle for preparation of its financial statements. Cost of sale is recorded in the same period in which the revenue earned from the sale is recorded. What is the name of this accounting principle? इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है बैंक वाले आप लोगों से रेवेन्यू कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ना, इस पैसे को कमाने के लिए वो क्या क्या लगा रहे हैं, इस जगह का रेंट लगा रहे हैं, टीचर्स की सैलरी दे रहे हैं, वो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं। रेवेन्यू अगर उन्होंने अब आपको हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, बेशक आपने पैसे दिए या ना दिए, रेवेन्यू वो इस महीने रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक वाले अगले महीने रिकॉर्ड करेंगे जब आपने बैंक कैश दे दी इस महीने। तो इस महीने अगर आपने इनकम रिकॉर्ड कर ली है तो उस इनकम को कमाने के लिए जितने खर्चे हुए हैं वो भी आपको किस साल या महीने में लिखना पड़ेगा, इसी महीने में। मैच करो, मैचिंग कॉन्सेप्ट किस दो चीजों को मैच कर रहा होता है, रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। अगर रेवेन्यू इस महीने रिकॉर्ड किया तो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों को भी आप किस साल रिकॉर्ड करोगे, महीने में, इसी साल। उस कॉन्सेप्ट कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की दो चीजों को मैच कर रहा होता है, इनकम विद एक्सपेंसेस को, यानी अगर इनकम इस महीने रिकॉर्ड की तो उस इनकम को कमाने के लिए जितने भी आपने खर्चे किए वो भी आप किस महीने में रिकॉर्ड करोगे, इसी महीने में, चाहे पैसे दिए या पैसे ना दिए, चाहे पैसे मिले या पैसे ना मिले। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस इनकम विद एक्सपेंसेस। देखिए अपने पास मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस इनकम विद एक्सपेंसेस। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस इनकम विद एक्सपेंसेस। Very good.